کیا سلطان زندہ ہے؟ اداراتی نوٹ: اس کہانی کو پڑھتے ہوئے ہمیں بھی ایسا ہی لگا تھا جیسے ہم ایک گھسی پٹی کہانی پڑھ رہے ہیں جو ہم نے بارہا کسی ہندوستانی فلم میں دیکھی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس پر یقین نہیں آیا، لیکن کافی عرصہ اس پر کام کرنے کے بعد ہم نے ایسے شواہد اکٹھے کیے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطان نامی شخص ایک حقیقت تھا یا اب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کہانی کے تمام مندرجات ہمیں مصطفیٰ نے لکھ کر بھیجے، جن کی صرف زبان اور ترتیب درست کی گئی ہے۔ ہم مصطفیٰ کی کہانی بیان کرنے کی صلاحیت کا محترف ہیں، اور ایران بھی کہ انہیں سلطان سے جڑی ہر بات کا ایسے علم ہے جیسے سلطان کو خود تھا یا ہوگا۔ ہم مصطفیٰ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کہانی کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کہانی کی سچائی کی ذمہ داری مصطفیٰ اور ان افراد پر عائد ہوتی ہے جن کے بیانات لیے گئے ہیں۔ ادارہ اس کہانی کو صرف اس لیے شائع نہیں کر رہا کہ یہ دلچسپ یا عجیب ہے، بلکہ اس سے جیش العدل اور پاکستانی فوج اور اس کے خفیہ اداروں کے درمیان تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ اس کہانی پر ہم نے 10 جولائی کو کام مکمل کر لیا تھا، لیکن چونکہ عید الاضحیٰ قریب تھی اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ عید کے بعد اس کہانی کو شائع کریں گے تاکہ سلطان کے گھر والے آرام اور سکون سے اپنی عید گزار سکیں۔ ادارے نے اس حوالے سے اس کے بھائی کو بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ ادارہ یہ کہانی عید کے بعد ہی شائع کرے گا۔ وہ مسخ لاش سلطان کی تھی۔ منقسم بلوچستان کے سرحد پر 12 اپریل 2021 کو ملنے والی ایک لاش مبینہ طور پر سلطان نامی شخص کی تھی، جو کہ قلعہ چبی جواد کلات خاران کا رہائشی تھا۔ سلطان کے بارے میں خبر دینے والے نے دعویٰ کیا ہے کہ سلطان جیش العدل، پاکستان کے ملٹری انٹیلیجنس یعنی MI اور ایرانی سپاہ پاسداران کے لیے مختلف اوقات میں کام کرتا رہا۔ بعد ازاں تعلقات خراب ہونے پر جیش العدل اور پاکستانی فوجی اہلکاروں نے اسے ایرانی سپاہ پاسداران کے حوالے کرنا چاہا، لیکن بیابان میں پیاس نے اس کی جان لے لی اور اس کا ساتھی خوش قسمتی سے زندہ بچ گیا، جس نے اپنی اور سلطان کی سرگزشت ریڈیو زرمبش کے ساتھ بیان کی۔ ریڈیو زرمبش کی خبر جس پر رابطہ کیا گیا۔ اپریل میں ریڈیو زرمبش نے بارڈر بندش کے بعد کی صورتحال پر پے در پے کئی خبریں شائع کی۔ پہلی خبر 13 اپریل 2021 کو شائع ہوئی تھی، جس کے مندرجات درج ذیل تھے۔ بارڈر پر 3 نامعلوم افراد کی لاشیں۔ گزشتہ روز تربت میں بارڈر بندش کے خلاف شہید فدا چارراہ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے سول سوسائٹی کے رہنما گلزار دوست نے کہا، ہم سیاسی عزائم لے کر یہاں جمع نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہم اپنے ذرائع معاش کی بحالی چاہتے ہیں۔ ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے اس نام نیاد انگریز کے بنائے گئے سرحد پر کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ بلوچ کی زمین ہے، اس سے نہ صرف مکران کے لوگ بلکہ جالاوان، ساراوان، رخشان اور لسبیلا کے لوگ بھی اپنا پیٹ پال رہے ہیں، لیکن جن حاکموں نے ہمیں اپنا غلام بنا رکھا ہے انہوں نے اس نام نیاد بارڈر کو بند کر کے ہزاروں لوگوں کے چولہے بجھا دیے ہیں۔ گلزار دوست نے اپنی تقریر میں ہی یہ پریشان کن انکشاف کیا تھا کہ بارڈر پر روکے جانے پر 3 افراد پیاس اور بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملنے والی ایک نامعلوم لاش کے بارے میں ابتدائی معلومات۔
गुलजार दोस्त ने सरहद पर मिलने वाली नामालूम लाशों के बारे में बताया। कल 12 अप्रैल को जब एक नौजवान की लाश आई थी जिसे हमने दफन किया था, उसे किसी ने नहीं पहचाना। हमें सिर्फ इतना कहा गया था कि यह खारान का रहने वाला था। लाश बुरी तरह मसख हो चुकी थी, पहचान में नहीं आ रही थी। इसके जेब से भी कोई शिनाख्ती कार्ड बरामद नहीं हुआ जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके। अलबत्ता यह उन अफराद में से किसी की लाश है जो बॉर्डर पर प्यास की शिद्दत से हलाक हुए हैं। 17 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट में 3 लाशों के बारे में क्या था? जो 3 लाशें मिली हैं उनके बारे में अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि वो किन अफराद की लाशें हैं। एक लाश मुसद्दिका तौर पर तुर्बत सिविल अस्पताल में लाई गई थी जिसे सिविल सोसाइटी ने दफन किया, जो नाकाबिल शुनाख्त थी। उसके बारे में मजीद मालूम नहीं हो सका कि वो किसकी लाश थी और ये भी महज दावा है कि वो प्यास की शिद्दत से हलाक हुआ था। लाश झाड़ियों में मिली थी और बुरी तरह मसख थी। इसी तरह दीगर 2 लाशों के बारे में मुहतबर ज़रा ने यह दावा किया है कि इन्हें नदी से 2 अफराद की लाशें मिली थीं जो इंतहाई हद तक मसख थीं, जिन्हें जामरान में किसी जगह दफन किया गया। इन दोनों के बारे में भी मुसद्दिका तौर पर कोई गवाही नहीं मिली है कि इनकी मौत प्यास की शिद्दत से हुई है या किसी दूसरी वजह से। ताहम यह दावा किया गया है कि यह अमवात भी प्यास की वजह से हुए हैं। सुल्तान के मुबैना दोस्त का इब्तिदाई बयान। सुल्तान के मुबैना दोस्त मुस्तफ़ा, फर्जी नाम है, ने इस खबर को पढ़ने के बाद हमसे राब्ता किया। उन्होंने रेडियो जुम्बश पर शाया होने वाली खबर का स्क्रीनशॉट लेकर इसे रेडियो जुम्बश के नंबर पर अरसाल किया और लिखा, भाईजान, जिस मैयत को तुर्बत सिविल सोसाइटी ने दफन किया था उसकी मौत की प्यास के अलावा भी एक और वजह थी जो एक बहुत बड़ा राज है। पता नहीं क्यों मेरा ज़मीर कभी चुप होने को कहता है और कभी इस राज को जाहिर करने को कहता है। कुछ देर की तवक्कुत और हमारी तरफ से फौरी जवाब देने में पस पेश के बाद उसने मजीद बताया, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। अगर मैंने ये पूरी सच्चाई आपको बता दी फिर कहीं ये मेरे लिए एक मसला न बन जाए। अगर ये राज मैं छुपा लूं तो फिर इसके घर वालों के साथ जुल्म होगा। बराई मेहरबानी आप रहनुमाई करें कि मैं क्या करूं। इदारे की तरफ से मुस्तफ़ा को यकीन दिलाया गया कि उसके बारे में ऐसी कोई बात अफशा नहीं की जाएगी जिससे उसकी जिंदगी को खतरा लायक हो। जिस पर उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिस पर फौरी तौर पर यकीन करना इदारे के लिए मुश्किल था। इसलिए हमने अप्रैल से लेकर जुलाई तक इस कहानी के कई पहलुओं पर गौर किया और इसके बारे में तहकीक करते रहे ताकि इसकी सच्चाई तक पहुंच सकें। इदारे ने सुल्तान के किरदार की तस्दीक कैसे की? जुलाई के पहले हफ्ते में इस बारे में हमें मजीद मालूमात हासिल हुई, जिसमें सबसे अहम यह था कि हमें उनके एक भाई लखमीर का नंबर मिला, जिस तक हमारे राब्ते करने से पहले कुछ ऐसी मालूमात पहुंच चुकी थी कि जिसके जरिए हम तस्दीक कर सकते थे कि वाकई सुल्तान एक अफसानवी किरदार नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान था। उसके भाई को हमारे राब्ता करने पर हैरत हुई और जो मालूमात हमारी तरफ से उसे फराम किए गए, बिलखुसूस सुल्तान की मौत के बारे में, इस पर उसे आज तक यकीन नहीं। लेकिन मुस्तफ़ा ने ऐसे ठोस शवाहिद पेश किए कि जिनका जुटलाना आसान नहीं। तुर्बत सिविल सोसाइटी ने भी इस लाश के बारे में बताया था कि उसका ताल्लुक खारान से है। लखमीर ने उसकी तस्वीर की तस्दीक की और कहा कि उसका अपने भाई के साथ गुज़श्ता 1 साल से राब्ता नहीं हो पाया है। लखमीर सुल्तान के इस अफसोसनाक अंजाम और उसके खुफिया जिंदगी के बारे में यकीन करने को तैयार नहीं, लेकिन मुस्तफ़ा कहता है कि सच हमेशा कड़वा होता है और
कड़वे सच पर देर से यकीन किया जाता है। मुस्तफा ने कहा, उन लोगों को पिछले 1 साल से मलिक उमर अलीज़ई का बेटा जायद अलीज़ई झूठी तसल्लियां दे रहा है। उसे यकीन है या नहीं, मैंने अपना कदा कर दिया। लखमीर ने कहा है कि वो नवाबशाह में रहता है और जिंदगी में कभी खारान नहीं गया है। मुस्तफा ने हमें बताया है कि सुल्तान की वालिदा का आबाई ताल्लुक नवाबशाह सिंध से है। मुस्तफा ने अपने दोस्त की लाश कैसे पहचानी? मौत के वक्त सुल्तान ने आसमानी रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके कंधे पर लाल रंग की चादर थी और उसने स्याह रंग के तस्मे वाले जूते पहन रखे थे। ये वो निशानियां हैं जिसकी वजह से मुस्तफा सुल्तान की मौत का दावा करता है, मगर सुल्तान के भाई वलीउल्लाह ने यकीन से कहा है कि सुल्तान जिंदा बच गए हैं। सुल्तान के भाई वलीउल्लाह का बयान। 11 जुलाई 2021 एक शख्स ने रेडियो द्रुम्बिश के नंबर पर राब्ता करके बताया कि उसका नाम वलीउल्लाह है और वो सुल्तान का भाई है। उससे मैसेज पर हुई बातचीत में उसने बारहा इस बात की तरदीद की कि सुल्तान की मौत वाकई हो चुकी है, लेकिन हमारे लिए ये अहम था कि किसी तरह हम इस पेचदार कहानी की तस्दीक कर सकें। और बिलाखिर वलीउल्लाह ने ये जुमला कहकर इस कहानी की सच्चाई पर मोहर तस्दीक ज़ब्त कर दिया कि उसने मतलब मुस्तफा ने आपको जो कहा है वो ठीक कहा है। आपकी सब बातें सच हैं, मगर हमको आज मालूम हुआ है कि वो जिंदा है। उन्होंने मजीद कहा कि सुल्तान प्यास की शिद्दत से मौत के मुंह में जाने से बच गया है, लेकिन अभी तक उसकी हालत ठीक नहीं है और वो एक ईरानी की पनाह में है। हमारा अभी उससे राब्ता हुआ है। वलीउल्लाह के मुताबिक जुम्बिश के राब्ता करने से पहले गुज़िश्ता 1 साल से उनका सुल्तान से कोई राब्ता नहीं था और वो अब उसकी जिंदगी का जश्न मनाने वाले हैं। उन्होंने एक तस्वीर भी हमें अरसाल की जो सुल्तान ने 1 साल कबल दालबंदीन से अपने छोटे भाई को भेजा था और उसके बाद बकौल वलीउल्लाह वो गायब हो गया। सुल्तान जैशुल अदल का एक खतरनाक खुफिया किरदार जो ईरानी एजेंसी को भी धोखा देता रहा। सुल्तान खारान का रिहायशी था और कई सालों से ईरान में सुन्नी हुकूक के दावेदार मुसल्ला मजहबी इंतहा पसंद तंजीम जैशुल अदल के लिए काम किया करता था। सुल्तान एक वक्त में डबल एजेंट भी बना। उसने किसी तरह सिपाही पासदारान इनकलाब ईरान से मुंसलिक ईरानी इंटेलिजेंस यानी इत्तलाहत तक नफूज हासिल की और इनके लिए काम करने की हामी भरी। जैशुल अदल में उसका तंजीमी नाम मुतल्लिब था, जबकि इत्तलाहत को उसने अपना तारुफ सरफराज के नाम से किया। ईरानी इत्तलाहत के साथ उसने जैशुल अदल के नायब अमीर मोहम्मद आशिम उर्फ मुल्ला महदूद के कहने पर ताल्लुकात इस्तवार किए। मोहम्मद आशिम नकरी को सितंबर 2018 को ईरानी फोर्सेस ने सरावान में किए गए कार्रवाई में हलाक किया। मोहम्मद आशिम की हलाकत के बाद सुल्तान जैशुल अदल के मुल्ला अब्दुल्ला उर्फ मुल्ला उमर के मातहत काम करता रहा। इस दौरान उसने इत्तलाहत को धोखे में रखकर ईरान से लाखों मालियत की गाड़ियां और दीगर वसाइल हासिल करके जैशुल अदल के हवाले किए और ईरानी इंटेलिजेंस से वाबस्ता अफराद की निशानदेही करके उनके मिशन को नाकाम बनाया। जल्द ही ईरानी इंटेलिजेंस को इस बात की भनक लगी कि सुल्तान उनके साथ धोखा कर रहा है। दूसरी तरफ सुल्तान ने भी महसूस किया कि अब मजीद इत्तलाहत को धोखे में नहीं रख सकता
اس پر اسے جیش العدل نے کچھ رقم دے کر خاران سے کچھ وقت کے لیے دور جانے کو کہا۔ سلطان کی والدہ سندھ کے ضلع نواب شاہ سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے سلطان نواب شاہ چلا گیا، جہاں اس نے جیش العدل کے دیے گئے پیسوں سے ایک پرچون کی دکان کھولی۔ سلطان ویسے تو شادی شدہ تھا اور اس کی اپنی پہلی بیوی سے 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہیں، لیکن نواب شاہ نے اس نے ایک اور لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے منگنی کر لی۔ سن 2019 کو جیش العدل کو مالی مدد کی ضرورت پیش آئی تو اس کی لیڈرشپ نے سلطان سے پیسے دینے کو کہا، جس پر سلطان نے اپنی دکان کی سرمایہ میں سے کافی رقم نکال کر مذکورہ تنظیم کے حوالے کی، جس سے اس کی دکان خالی ہو گئی اور وہ خود مالی پریشانی سے دوچار ہو گیا۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اس نے اپنے دوست زائد ولد ملک محمد عمر علیزئی سے مدد مانگی۔ زائد جیسے کسی ایسے موقع کی تاک میں تھا اور جب سلطان نے اسے رابطہ کیا تو اس نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ زائد جانتا تھا کہ سلطان ایک نڈر ڈرائیور اور ایک با کمال میکینک ہے۔ اسے بلوچستان کے خفیہ راستوں کا بھی علم تھا، ایک ذہین اور تیز بندہ جو اس کے لیے کئی کام کر سکتا تھا۔ اس نے سلطان کو پیغام بھیجا کہ تم خاران آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے ایک سرکاری نوکری دیکھی ہے اور تمہاری دوسری شادی کا خرچہ بھی برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ زائد نے سلطان کو خاران بلا کر اسے جیش العدل سے علیحدگی اختیار کرنے کو کہا، لیکن سلطان اس کے لیے تیار نہیں ہوا، جس پر زائد نے MI کے افسران کلیم، وقاص، رحمت، جمشید اور عدنان کے ذریعے جیش العدل دالبندین کے امیر جمعہ اور ملا یونس کو سلطان کے خلاف ورغلایا، جو سلطان کے جانی دشمن بن گئے۔ مصطفیٰ کے مطابق ملٹری انٹیلیجنس اور جیش العدل کے اراکین در پردہ ایک تھے، جنہوں نے سلطان کو باور کروایا کہ جیش العدل کے اراکین سے ناراض ہیں اور MI نے سلطان کو مکمل حمایت کا یقین دلاتے ہوئے بظاہر جیش العدل کے اراکین پر زور دیا کہ وہ سلطان سے غلط برتاؤ کی معافی مانگے۔ پھر زائد اور MI نے اس کے ذریعے کنری خاران کے رہائشی شعیب ولد فضل کو جبری لاپتہ کروایا، لیکن یہ کام سلطان کے ضمیر کو ناگوار گزرا۔ اس نے MI کے افسران پر واضح کیا کہ وہ اپنے بھائیوں کا دشمن بننا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ اسے نوکری اور MI کی حمایت کی ضرورت نہیں۔ سلطان نے MI سے تعلقات منقطع کر لیے، لیکن زائد نے اسے پھر سے گھیرنے کی کوشش کی۔ اسے 70,000 روپے دیے اور 2 دن بعد اسے پھر MI کے لیے کام کرنے کو کہا۔ زائد کی بات نہ ماننے پر بھمن نصروی اور شاہد گل ملازئی، غیاس بڑیچ سکن دالبندین سلطان کے پاس گئے اور اسے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے زور دیا۔ سلطان کا جواب پھر بھی انکار تھا، جس پر انہوں نے ملک محمد عمر کو 2 لاکھ روپے دے کر سلطان کو راضی کرنے کے لیے بھیجا۔ سلطان نے اس کے سامنے شرط رکھی کہ اگر میرا پکڑا ہوا بندہ شعیب کو بازیاب کیا جائے تو میں کام کرنے کو تیار ہوں۔ MI نے اس شرط کو قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا وقت مانگا اور 4 مہینے بعد سلطان کو کھال کیا کہ آ کر شعیب کو اپنی تحویل ملے، مگر سلطان نے کہا کہ اس طرح اس کا راز کھولنے کا خدشہ ہے، اس لیے شعیب کو کسی سڑک پر چھوڑ دیں، وہ خود گھر چلا جائے گا۔ MI نے اس کی بات کے مطابق شعیب کو رہا کر دیا۔ مصطفیٰ بتاتا ہے کہ سلطان دکھنے میں سیدھا سادہ اور بغیر پروٹوکول کے رہتا تھا، لیکن اس کے نعمت زیری حبیب مراد شیعی
मलिक मोहम्मद अली ज़ई जैसे लोगों से करीबी रवाबित थे। शुएब की बाजियाबी के बाद सुल्तान ने एमआई से दूरी बनाए रखी। उनके हाँ में हाँ मिलाता रहा, लेकिन उनके लिए अमली काम से गुरेज करता रहा, जिस पर एमआई ने उसके खिलाफ जैशुल अदल को दोबारा भड़काया। लेकिन सुल्तान किसी भी तरह उनके लिए काम करने पर राजी नहीं हुआ। लेकिन जायद ने सुल्तान के खिलाफ साजिशें खत्म नहीं की और उसने सुल्तान के नाम पर तफ्तान बॉर्डर में टेका हासिल किया और उसे कहा वो उसे मजीद एमआई के लिए काम करने पर मजबूर नहीं करेंगे, वो बस अपनी ठेकेदारी करे। लेकिन जायद खुफिया तरीके से हिफ्सी के जरिए पैसे निकाल कर अपने अकाउंट में डालता रहा। जब सुल्तान का ठेका खत्म हुआ तो सुल्तान अपने बिल लेकर पैसे मांगने गया, तो वहां उसके नाम पर कोई काम था ही नहीं। जो काम उसने किए थे उसके पैसे जायद ले गया था, जिस पर वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि मजदूरों के पैसे भी उसके जिम्मे थे, गाड़ी वालों की भी अदायगियां थीं, डीजल वाले भी अपनी रकम के तलबगार थे, और ये सब खारान में सुल्तान के घर पैसे मांगने गए। कुछ मजदूर सिंध के थे जो नवाब शाह में उसके रिश्तेदारों के पास अपनी फरियाद लेकर गए, जिससे सुल्तान बेहद परेशान हुआ। उसे जायद ने फोन करके बताया कि अगर एमआई वालों की शर्त मान लोगे तो तुम्हारे सारे मसले एक दिन में हल होंगे। अगर एमआई तुम्हारे खिलाफ है तो कोई दूसरा शख्स या इदारा तुम्हारा इस साथ ताउन नहीं करेगा। मगर सुल्तान ने इनकार किया कि वो अपने भाइयों को अपने हाथों से कुएं में नहीं धकेल सकता। अगर मैं कर्जदार हूं तो ये लोग मुझे बेइज्जत कर सकते हैं, मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन मैं किसी दूसरे की जान लेकर वो गुनाह अपने सर नहीं ले सकता। उसने इनकार किया। नवंबर 2020 को सुल्तान तफ्तान से नौकुंडी गया और फिर नौकुंडी से यकमच गया। एक दिन वो अपने दोस्त मुस्तफ़ा के साथ यकमच के स्याहरिक के ठेले पर बैठा अपनी परेशानियों का जिक्र कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। अब वो नवाब शाह भी नहीं जा सकता था जहां उसके कर्जदार उसे तकाजा कर रहे थे। इसी हसना में एक सफेद कलर की 2000 अपसद डबल केबिन गाड़ी जिसके काले शीशे चढ़े हुए थे उनके करीब आई, जिससे 2 मुसल्लह अफराद बाहर निकले, जिनके चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ियां भी थीं। दोनों ने आकर सलाम किया। सुल्तान ने परेशानी के आलम में सलाम का जवाब दिया। उन्होंने से 3 सवालात किए। तुम्हारा नाम क्या है, इधर क्या कर रहे हो और कहां जाना है? बाकी कहानी मुस्तफा की जुबानी। सुल्तान एक निडर शख्स था। उसने उनसे मुखातिब होकर कहा, अपनी ये जंग आलूद बंदूकें नीचे कर लो और अपना नाम बताओ। आप लोग कौन हो और मेरा ताक़ुब क्यों कर रहे हो? इनमें से एक ने कहा, हमारा ताल्लुक जैशुल अदल से है। सुल्तान ने उसको जवाब दिया कि मैं भी जैशुल अदल का साथी हूं। इस पर उन्होंने सुल्तान से उसका तंजीमी नाम पूछा। उसने अपना तंजीमी नाम मुतल्लिब बताया। इनमें से एक ने अपना नाम अब्दुल हद बताया और दूसरे का याद नहीं। एक दूसरे से तारुफ करने के बाद दोनों एक दूसरे के गले लगे और उन्होंने मुल्ला अब्दुल्ला और मुल्ला यूनुस को मैसेज किया। वो भी वहां पर आ गए। उन्होंने सुल्तान को गाड़ी में बिठाकर उसके साथ बातचीत की। सुल्तान का मोबाइल लेकर लॉक ऐप्स में उसकी लॉक जबरदस्ती खुलवाया। उस ऐप में सुल्तान की बहन और बीवियों की तस्वीर भी थी, जबकि एक लड़की की फाहिश तस्वीर भी थी। उन्होंने ये सारी तस्वीर अपने मोबाइल में ट्रांसफर की और सुल्तान को ब्लैकमेल किया कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो ये तस्वीर शाये किए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने सुल्तान को छोड़ दिया। फिर हम दालबंदीन आ गए। कुछ दिन बाद हम दालबंदीन के एक होटल में बैठकर चाय पी रहे थे कि अचानक एक ब्लैक कलर की सर्फ गाड़ी आ गई। गाड़ी में सवार अफराद
जिनमें एफसी एहलकार भी शामिल थे। उन्होंने हमें आवाज देकर अपने पास बुलाया और फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर ईरानी सरहद की तरफ ले गए। उन्होंने सुल्तान का सौदा ईरान में कर रखा था। मुझे उस वक्त नहीं पता चला कि कौन सा इलाका है। एफसी एहलकारों ने हमें एक पहाड़ की ऊंट में छुपाया और खुद हमें सरहद पार ले जाने के लिए इंतजाम करने गए। इस दौरान सुल्तान के हाथ खुल गए, उसने मेरे हाथ भी खोले और हम वहां से निकल गए। रात की तारीकी थी, हम प्यासे थे और हमारे पास बहुत थोड़ा सा पानी था। रात भर ऊंचे नीचे पहाड़ों पर सफर करते रहे, लेकिन हमें कोई आबादी नहीं मिली। दूर रोशनी की शुआएं नजर आ रही थीं और हमारे दुश्मन भी हमारा ताक़ुब कर रहे थे। जब वो लोग हमारे करीब आए तो सुल्तान ने मुझे पानी की बोतल देकर हिदायत की, तुम इस समेत आगे बढ़ते जाओ, मैं यहीं रुकता हूं। जब वो करीब आएंगे तो मैं उनको पहाड़ों में चकमा देने की कोशिश करूंगा, जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। मैंने उससे रुखसत लेते वक्त वादा किया कि अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हारे बच्चों को सारी उम्र खर्च दिया करूंगा। अगर तुम जिंदा रह गए तो फिर तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इस मौके पर हमने एक दूसरे के साथ अपने घर वालों के राब्ता नंबरों का भी तबादला किया। इसी असना में लोग करीब पहुंच गए। सुल्तान ने मुझे आगे भिजवाया और खुद दूसरी तरफ निकल गया। वो लोग सुल्तान के पीछे भागे क्योंकि उन्हें मुझसे कोई गर्ज नहीं था। मैं आगे की तरफ निकल गया। सुबह होने वाली थी। मैं प्यास की शिद्दत से निढाल था, जिससे मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को निवानो बुलेदा में एफसी के पास पाया, जिन्हें मैंने पूरा किस्सा बताया, मगर उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि तुर्बत में एक लाश लाई गई है। मैं उसे देखने गया। दूर से देखने पर मैंने उसके कपड़ों से उसे पहचान लिया। फिर मैं उसी वक्त खारान के लिए निकल गया। मैंने देखा कि उसकी माँ, बाप, बहन, भाई और बच्चे सभी अपनी दुनिया में खुश थे। उन्हें सुल्तान के बारे में कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उन्हें सुल्तान की मौत के बारे में बताता, और मैं उनको बताए बगैर वहां से निकल आया। Zrumbish